رمضان اللہ کا احسان ہے، پیارا یہ رمضان ہے، ہر مومن کی شان ہے، پیارا یہ رمضان ہے، رمضان 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 رمضان۔ اس رمضان 100% حلال الکوہل فری عطر یوز کریں۔ خریدنے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں، ہماری ویب سائٹ adilqadri.com ابھی وزٹ کریں، اور ہاں، عطر ناپسند آنے پر 100% پیمنٹ ریفنڈ کر دیا جائے گا۔ حمد، نعت، منقبت، دعا وغیرہ ہائی کوالٹی آڈیو اور 4K کوالٹی ویڈیو اسٹوڈیو البم ریکارڈ کروانے کے لیے ابھی محمود RQ پروڈکشن سے رابطہ کریں۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان سید محمد جامی شفیع الجیلانی بارگاہ حضور غوث العالم طارق السلطنت محبوب یزدانی میر احد الدین سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی نور بخشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے براہ راست آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امید ہے کہ ہم سب کے روزے بڑے خیر اور عافیت کے ساتھ گزر رہے ہیں۔ جیسا کہ آج 7 رمضان المبارک کا آغاز ہو گیا ہے اور 6 روزے بفضل الہی ہمارے مکمل ہوئے، اور آج ہم نے 7ویں تراویح ادا کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، بالخصوص میں آج اپنے تمام ویورز کے لیے اور تمام میرانی گروپ آفیشل پیج کے دیکھنے والے، پسند کرنے والے اپنے بھائیوں کے لیے آج کے ایپیسوڈ میں ہمارے پینل میں ہوں گے حضرت علامہ مولانا مفتی سلمان اظہری صاحب، اور ان کے ساتھ ہی ساتھ حضرت علامہ مفتی صدام حسین برکاتی صاحب ہوں گے، اور ان کے ساتھ ہی ساتھ مولانا جیشان برکاتی ہوں گے، اور خلیفہ حضور رئیس ملت حافظ سکندر اشرفی میرانی سلطان پور وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، اور بین الاقوامی شہرت یافتہ ثنا خاں غلام مصطفیٰ قادری صاحب وہ بھی آج ہمارے ساتھ ہمارے اس پینل میں نظر آئیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ ہم سب سے پہلے آج کے پروگرام کا آغاز اس طریقے سے کرتے ہیں کہ میرے دوستو، احبابو، میرانی گروپ آفیشل پیج کے ویورز، آپ ضرور اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ ماہ رمضان المبارک چل رہا ہے اور پورے ہندوستان میں اس وقت کورونا کی وبا بڑی ہی زور شور سے ہے۔ آپ ہر روز نماز کے بعد بھی اپنے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے ملک کے احباب کے لیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے دعا کرتے رہیں، اور جو کوئی بھی محفوظ ہے اس وبا سے اب تک، وہ ڈیلی خدا کی بارگاہ میں حمد و ثنا بیان کرے، سجدہ شکر ادا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دور میں جہاں صرف کثرت سے اموات واقع ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی بخشا ہے تو اس کا ہم خوب شکر ادا کریں۔ آج دیکھیں آپ سب لوگ کہ ایک آکسیجن کے لیے دنیا مر رہی ہے، ایک سانس رکتی ہے اور اس کے لنگز میں پرابلم ہوتا ہے، جس سے آکسیجن لیول ڈاؤن ہوتا ہے اور آدمی کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ میرے دوستو، آپ اپنی صحت کا ضرور خیال رکھیں، اب ماسک وغیرہ کا استعمال کریں، کہیں باہر نکلیں، جو بھی تدابیر گورنمنٹ کی ایڈوائزری جو بھی بتائی گئی ہے، WHO کی، میڈیکل سائنس کی، اس پر عمل کرتے رہیں، اور ساتھ ہی ساتھ حضور رئیس ملت مظہر کرامات غوث اعظم حضرت پیر سید رئیس شفیع الجیلانی سجادہ نشین آستانِ سرکار شاہ میرا کا ایک عمل ہے، نسخہ عمل ہے، جس کو آج میں آپ کے درمیان پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ تمامی لوگ ہمہ وقت باوضو رہیں۔ اپنے گھر سے سب سے بیسٹ سینیٹائزر ہے کووڈ 19 سے بچنے کا، وہ وضو ہے۔ آپ کیا کریں کہ ہمہ وقت وضو سے رہیں، جب بھی آپ تجارت کے لیے جائیں، گھر کے باہر نکلیں، واش روم سے اپنی حاجتوں کو، ضرورت کو پورا کر کے فارغ ہوں تو آپ ترنت وضو کر لیا کریں۔ جو وضو کے پانی میں اتنی طاقت ہے کہ وہ وضو کا پانی ہمارے جسم کے گناہوں کو، جو گناہ دکھتا نہیں ہے، اسے مٹا دیتا ہے، اسے ہمارے جسم سے، ہماری باڈی کے پارٹ سے خارج کر دیتا ہے۔ تو کووڈ 19 کا جو کیڑا ہے، بیکٹیریا، یہ بھی دکھتا نہیں ہے۔ ہمارا یقین ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو وضو گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے، تو وہ وضو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس وبا سے بھی ہمیں بچائے رکھے گا۔ The best sanitizer in this time make wuzu always 24 hours۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ
آپ ماسک وغیرہ کا بھی استعمال کریں. حضرت رئیس ملت کا فرمان ہے جو شخص اگر اس وبا کی زد میں آ جائے یا نہیں بھی آیا ہے تو وہ ڈیلی 333 مرتبہ 333 ٹائمز لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ورد کرے. 333 ٹائمز اس آیت کریمہ کا ورد کرے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اور 11 مرتبہ اول اور آخر درود شریف پڑھے اور ایک پانی میں دم کر کے اس پانی کو پی لے اور اپنے چہرے پر لگا لے. اگر کوئی مریض ہے پڑھ نہیں سکتا ہے تو اس مریض کو بھی یہ پانی آپ دم کر کے دیں گے, یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام کی برکت سے شفا عطا فرمائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. تو حضرات گرامی, آج کا ہمارا ٹاپک عنوان ہے محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. تو ہم چلتے ہیں اپنے پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے ہمارے ساتھ حافظ سکندر صاحب جڑ چکے ہیں سلطان پور سے, جن کا تعلق ہے, اور ان سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آغاز تلاوت قرآن کرائیں گے اور حمد باری تعالیٰ ہم سماعت کریں گے. حافظ صاحب اگر جڑ چکے ہیں تو ان کو اسکرین پر شو کریں. اللہ کا احسان ہے پیارا یہ رمضان ہے, ہر مومن کی شان ہے پیارا یہ رمضان ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محترم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حافظ سکندر صاحب کیا حالات ہیں آپ کے سلطان پور کے؟ الحمدللہ سلطان پور میں بھی سب اچھا ہی ہے. حافظ صاحب پروگرام کا آغاز قرات سے کریں آپ. جی جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. سبحان اللہ سبحان اللہ. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. سبحان اللہ سبحان اللہ. وأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا
سبحان اللہ ماشاء اللہ. حافظ سکندر صاحب. سبحان اللہ ماشاء اللہ. میں چاہتا ہوں حمد باری تعالیٰ آپ ہمارے سامعین کو سنائیں. جی حضرت ضرور. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے. وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دکھائی بھی جو نہ دے، نظر بھی جو رہا ہے، وہی خدا ہے. وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے. سبحان اللہ. بے شک تلاش اس کو نہ کر کتابوں میں، وہ ہے بدلتی جو دن رات رات کو دن آئے ہے. بے شک وہی خدا. سبحان اللہ. بے شک حق ہے. وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے. وہی ہے جو نظام ہستی چلا بے شک رہا ہے، وہی خدا ہے. دکھائی بھی جو نہ دے، نظر بھی جو رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے. اور ہم اسی منصوبت میں ایک ایسا جو ہمارے پیر و مرشد حضور سید رئیس اشرف شفیع الجیلانی کی سبحان اللہ. بہت خوب ماشاء اللہ. سید نظامی اشرف نے لکھا ہے، وہ جو بیک وقت ایک نعت پاک بھی ہے اور حمد باری تعالیٰ بھی ہے. آپ حضرات سماعت فرمائیں کہ پڑھو کہیں وہاں کی صورت، پڑھو کہیں وہاں کی صورت، کہیں پہ کوثر دیکھو آیا. پڑھو کہیں وہاں کی صورت، کہیں پہ کوثر دیکھو آیا. جو اپنے محبوب پہ سبب نہ لٹا رہا ہے. سبحان اللہ. بے شک حق ہے. وہی خدا ہے. سبحان اللہ. وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے. وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے. دکھائی بھی جو نہ دے، نظر بھی جو رہا ہے، وہی
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सैयद निज़ामी अशरफुल गिलानी का ही लिखा हुआ एक ऐसा मंत्र जो बैक वक्त मनक़बत भी है और माशाअल्लाह। आप जरा से समाज फरमा दें कि कभी मैं अशरफ पिया को देखूं, कभी मैं गौसुल पैदा को देखूं, कभी मैं अशरफ पिया को देखूं, कभी मैं गौसुल पैदा को देखूं, जो अपना जलवा इन हस्तियों में दिखा रहा हाय हाय, बेशक वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये थे हाफिज सिकंदर अशरफी मीरानी, खलीफा हुजूर रईस मिल्लत सरजमीन सुल्तानपुर से बहुत प्यारे अंदाज से हमद बारी ताला हम सामईन को सुना रहे थे। अब इंशाअल्लाह तबारक तआला 11 भी बजने वाले हैं और थोड़ी ही देर में इंशाअल्लाह तबारक तआला हमसे हमारे दो अजीम मेहमान जुड़ने वाले हैं। और उससे पहले मैं बताता चलूं, जैसा कि हमारे प्रोग्राम का एक उसूल है कि 11 बजे हम एक सवाल पूछते हैं, जो सही जवाब सबसे पहले देता है, जो हमारे मीरानी ग्रुप ऑफिशियल पेज का कांटेक्ट नंबर जो मीरानी ग्रुप ऑफिशियल पेज पर लिखा हुआ है, उस पर व्हाट्सएप या टेक्स्ट मैसेज करके जिसका सबसे पहले जवाब आता है, उसे हुजूर रईस मिल्लत की तरफ से 500 रुपया नकद का इनाम दिया जाता है, जो तुरंत ही गूगल पे, पेटीएम के जरिए उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इससे पहले की नशिस्त में जो मैंने सरजमीन खंबाज से एक सवाल पूछा था, वो सवाल यौम जुमा के दिन मैंने पूछा था कि वो सवाल ये था कि अइम्माए अहले बैत कितने हैं, नाम के साथ बताएं। और सबसे पहले इस रुए जमीन पर मकामे गौसियत कुबरा उम्मत मुस्तफ़ा में किसको हासिल हुई है, ये मेरे सवाल थे। और उसका जवाब अल्हम्दुलिल्लाह कमोबेश तकरीबन 300 से जायद लोगों ने दिए हैं, इसके जवाबात दिए हैं पूरे इंडिया से और आउट ऑफ कंट्री से भी लोगों ने जवाब दिए। मुझे बेहद खुशी हुई है। जितने भी शुरका थे तकरीबन 300 लोग, उन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि वो लोग ने मेरे इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया और मेरे सवाल को जवाब देने की कोशिश की है। अल्लाह तबारक तआला उन सबको इल्म नाफे अता फरमाए। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि इल्म दीन हर घर में इल्म दीन का फरोग हो, इल्म दीन पहुंचे और हमें हमारे बेसिक नॉलेज हमें हमारे इस्लाम का, हमारे तसव्वुफ का बेसिक नॉलेज हमारे पास होना चाहिए। इसलिए हमने कुछ ऐसे सवालात का इंतखाब किया है जो आपकी जिंदगी में इंशाअल्लाह तबारक तआला हर मोड़ पर उसका जवाब काम आता रहेगा। अब हम चलते हैं आज के नए सवाल की तरफ, और क्योंकि 11 भी बजने वाले हैं, अभी 3 मिनट बाकी है। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि जिन्होंने सबसे सही जवाब जो दिया था, उन 5 लोगों का मैंने नाम नोट किया है, जिनमें चौथे नंबर पर है शाह फातिमा खातून मरोली गुजरात से, जिनका ताल्लुक है, इन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया था। और फिर तीसरे नंबर पर आयशा फातिमा बलरामपुर यूपी से, जिनका ताल्लुक है, इनका भी जवाब बिल्कुल सही था। और दूसरे नंबर पर मोहम्मद अमीन बीजापुर कर्नाटका से इन्होंने जवाब दिया है, इनका भी जवाब बिल्कुल दुरुस्त था। और इनके जवाब में से ताखीर हुई, वक्त पर इनका जवाब नहीं पहुंच पाया, इसलिए दूसरे नंबर पर रह गए। तो सवाल मेरा क्या था, जुमा के दिन मैंने किया था कि अइम्माए अहले बैत कितने, उनके नाम बताएं। नीस उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में सबसे पहले मकाम गौसियत कुबरा किसको हासिल हुई थी। इसका सही जवाब यह है कि अइम्माए अहले बैत 12 हैं। देयर इज 12 इमाम इन अहले बैत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। 12 अइम्माए अहले बैत हैं। सबसे पहले हजरत मौलाए कायनात हजरत मौला अली, उसके बाद इमाम हसन, इमाम हुसैन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम बाकिर, इमाम जाफर सादिक, इमाम मूसा काजिम, इमाम अली रजा, इमाम नकी, इमाम तकी, इमाम हसन अस्करी। और 12वें नंबर के इमाम है हजरत सैयदना इमाम महदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम। ये 12 अइम्माए अहले बैत हुए। और सब
सबसे पहले रुए ज़मीन पर उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में मकाम गौसियत कुबरा हासिल जो हुई है वो हज़रत मौलाए कायनात सैयदना अली मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला अला वजहिल करीम को हासिल हुई है। एक रिवायत में ये भी आया है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत तक, यानी आदम अलैहिस्सलाम की कौम से लेकर के हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत तक जितने भी औलिया पैदा हुए हैं उन सबको विलायत मौलाए कायनात के सदके से अल्लाह तबारक व तआला ने अता की थी। सुभान अल्लाह। ये हमारा जुमा का सवाल था जिसका जवाब दो लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने दिया, जिनमें 5 का मैंने जिक्र किया था, और जो पहले नंबर पर जिसका जवाब आया है वो खुशनसीब शख्स। तो मैंने क्या किया है इस बार, क्योंकि 2 जवाब ऐसे हैं जो एक टाइम पर आए हुए थे, तो उसके लिए तदबीक की सूरत मैंने ये निकाली है, क्योंकि एक जवाब में मकाम गौसियत कुबरा जो अकवाल से साबित है मौलाए कायनात को हासिल हुई है सबसे पहले इस रुए जमीन पर उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। लेकिन सैयदी आला हजरत अपनी मलफूजात में इरशाद फरमाते हैं मकाम गौसियत कुबरा सबसे पहले सैयदना अबू बकर सिद्दीक को हासिल हुई है। तो बाज लोगों ने हजरत अबू बकर सिद्दीक का भी नाम लिखा है और सबसे ज्यादा राजे कौल तो मौलाए कायनात का है। फिर भी हमने ये किया है जिन्होंने हजरत अबू बकर सिद्दीक का भी नाम लिखा है मकाम गौसियत कुबरा जिसको उम्मत मुस्तफ़ा में सबसे पहले हासिल हुई है, तो हमने क्या किया उनको भी इनाम दिया जाएगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला, क्योंकि दोनों बुजुर्ग हमारे अहले सुन्नत वल जमात के सर के ताज हैं, उनकी बात को हमें रखना है इंशाअल्लाह तबारक व तआला। तो पहले नंबर पर जो आए जिनको मिरानी ग्रुप ऑफिशियल पेज की तरफ से 500 रुपया नकद इनाम दिया जाएगा वो है मस्तान मोहम्मद मस्तान, ये हुबली कर्नाटका से इनका ताल्लुक है। इन्होंने सबसे पहले जवाब दिया था। मैं अपने ऑपरेटर से कहूंगा कि इनको लाइन पर लिया जाए और मेरी इनसे बात कराई जाए। और दूसरा जो जिन्होंने मकाम गौसियत कुबरा सबसे पहले जो हासिल हुई है वो जो दूसरे शख्स ने जो जवाब दिया हजरत अबू बकर सिद्दीक के हवाले से, जैसा कि मलफूजात आला हजरत में मज़कूर है, तो वो है आसरीना अशरफ जिनका ताल्लुक बसखारी शरीफ अंबेडकर नगर यूपी यानी कछौचा मुकद्दसा से जिनका ताल्लुक है। ये 2 जवाब आए हमारे पास और इन दोनों को इंशाअल्लाह तबारक व तआला मिरानी ग्रुप ऑफिशियल पेज की तरफ से इनाम दिया जाएगा। मैं अपने ऑपरेटर्स कहूंगा कि इनसे मेरी बात कराई जाए और अगर मुफ्ती साहब किबला हमारी लाइन पर आ चुके हो तो उन्हें बराए करम लाइन पर लिया जाए। अब मैं आगे चलता हूं, आज का सवाल लेकर के आपकी खिदमत में हाजिर होता हूं। आज का सवाल आप बगौर समात करें क्योंकि 11 भी बज चुके हैं, 11:02 हो चुके हैं। आज का सवाल यह है, आपकी स्क्रीन पर आप गौर से मुलाहिजा कीजिएगा। ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु के सिलसिले चिश्त में वो कौन 2 अजीम बुजुर्ग हैं जिन्होंने सल्तनत को तर्क किया? उनमें से एक गरीब नवाज के पीरों में आते हैं और एक गरीब नवाज के मुरीदों में आते हैं। ये आज का सवाल है कि सिलसिले चिश्त अहले बहिश्त गरीब नवाज के सिलसिले चिश्त में वो कौन 2 अजीम बुजुर्ग हैं जिन्होंने तर्क सल्तनत किया, अपनी सल्तनत को तर्क किया। उनमें से एक बुजुर्ग गरीब नवाज के शेख में आते हैं और एक बुजुर्ग गरीब नवाज के मुरीद में आते हैं। इन 2 अजीम बुजुर्ग का नाम आपको जिक्र करना है इंशाअल्लाह तबारक व तआला। ये आज का हमारा सवाल है। जो सबसे पहले जो हमारा नंबर मेंशन किया गया है 8128884217 पर जो सबसे पहले जवाब देगा टेक्स्ट मैसेज से या व्हाट्सएप के जरिए, तो उसे कल इंशाअल्लाह तबारक तआला ठीक 11 बजे मिरानी ग्रुप ऑफिशियल पेज की तरफ से इनाम दिया जाएगा। 500 रुपये का इनाम उसे दिया जाएगा इंशाअल्लाह तबारक तआला। ये आज का सवाल आप एक बार और समाप्त कर लें कि name the 2 great Sufi saints from the Chishti order who had left their entire empireship. One belonged to Huzur Garib Nawaz radiyallahu ta'ala Piro Murshid before the time of Garib Nawaz radiyallahu ta'ala, and second belonged to his descendant after the time of हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला। अन सही जवाब देने वाले को मिलेगा मिरानी ग्रुप ऑफिशियल पेज की तरफ से 500 रुपये का नकद इनाम दिया जाएगा। अब हम चलते कुछ कॉल लेते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह मुफ्ती साहब से गुफ्तगू होगी और कॉल यहाँ पर ड्रॉप होती हुई नजर आ रही है। हम एक कॉल लेंगे। और नाज़रीन किराम, आप हमारे प्रोग्राम को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जी आप बसखारी शरीफ से आप बोल रहे हैं? हम प्यारा रमजान एपिसोड से सैयद जामी अशरफ अर्ज कर रहे हैं। आपका नाम असरीना अशरफ है, जो आपने जवाब दिया था कि मकाम गौसियत कुबरा पर सबसे पहले उम्मत मुस्तफ़ा में हजरत अबू बकर सिद्दीक को हासिल हुई थी। यह आपका जवाब एक रिवायत के मुताबिक बिल्कुल दुरुस्त है। इसलिए आज हमारे मिरानी ग्रुप ऑफिशियल की टीम की तरफ से, क्योंकि एक सवाल का जवाब आपने गलत दिया था, एक का सही था, तो आपको 250 रुपया नकद इनाम आपको अकाउंट में डाल दिया जाएगा, पेटीएम या गूगल पे के जरिए। ठीक है, सबको मैं सलाम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ये बसखारी शरीफ से थे, इनसे अभी मेरी बात हुई है कि माशाल्लाह इस तरह की बात हुई है। अब मैं ऑपरेटर साहब से कहूंगा अगर मुफ्ती साहब किबला लाइन पर हो, गुलाम मुस्तफ़ा कादरी साहब आए हो, तो उन्हें लाइन पर कनेक्ट कर लिया जाए। तो हजरत गिरामी, आज का हमारा प्यारा रमजान एपिसोड में मौजू है मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाले वसल्लम। इंशाअल्लाह उस पर हम गुफ्तगू करेंगे मुफ्ती सलमान अजहरी साहब से, और इंशाअल्लाह कुछ ही देर में हमसे लाइन पर जुड़ने वाले हैं। और फिर उसके बाद हमारे जो शो में है मुफ्ती साहब किबला, मुफ्ती सद्दाम हुसैन साहब से मैं पूछना चाहता हूं, मुफ्ती सद्दाम साहब, ये जो 12 इमाम अहले बैत जो हैं, ये किस मुनासिबत से, कौन सी इनको इमामत हासिल हुई है कि इन्हें इमाम अहले बैत कहा जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व असहाबिहि अजमाइन। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जी हुजूर, आपने इरशाद किया कि ये 12 इमाम अहले बैत जो हैं जी, इनको अइम्मा किस एतबार से कहा जाता है, इसलिए ये सवाल पैदा होता है। मैं जानता हूँ कि ये सवाल आपने अपने नाजरीन और व्यूवर्स को बताने की गर्ज से किया है, ताकि व्यूवर्स भी जान लें कि उनके दिल में इस तरह के सवालात पैदा हो सकते हैं। जी जी, क्योंकि अक्सर लोगों को जहन में ये होता है कि 4 इमाम है, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम आजम। ये 12 इमाम अहले बैत क्या है, इनका क्या मनसब है, इनको क्यों इस तरह मखसूस अलकाब से याद किया जाता है? जी बेशक। मैं चाहता हूँ ताकि हमारे व्यूवर्स की इस्लाह हो, उनके इल्म में इजाफा हो। जी बेशक। जी मुफ्ती साहब, तो इसकी वजह यह है कि जब 4 अइम्मा हैं जिनकी तकलीद हम करते हैं, फिक़्ह के 4 इमाम हैं, उनको इमाम कहा जाता है, तो इनको इमाम फिर क्यों कहा जाता है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। आप मस्तान हुबली कर्नाटका से बोल रहे हैं? हम सैयद जामी अशरफ प्यारा रमजान एपिसोड मिरानी ग्रुप ऑफिशियल पेज से बोल रहे हैं। जी 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 जी। और कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं हैं आप। जी माशाल्लाह, आपका जवाब तकरीबन 300 से जायद जवाबात हमें मिले, दस्तयाब हुए हैं, जिनमें बात सही जवाब थे, और सबसे पहले आप ही का जवाब आया माशाल्लाह। और इसीलिए आपको हुजूर रईस मिल्लत की तरफ से 500 रुपया इनाम दिया जाएगा सही जवाब देने के लिए। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। तो ये आप ही, ये आपका ये नंबर जो आप यूज करें, इसमें पेटीएम या गूगल पे वगैरह आप यूज करते हैं? एक्चुअली में दूसरा नंबर है। अच्छा, तो आप बराए करें हमारे ऑपरेटर को दूसरा नंबर बता दें, ताकि लाइव शो में आप तक आपकी रकम पहुंच जाए। जी जी जी, मैं मैसेज में भेज देता हूँ इंशाल्लाह। ओके ओके, और चलिए, सबको सलाम, अपनी सेहत का और अपने इलाके वालों का ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। ये थे जो हमारे एपिसोड के पहले विनर थे, जो जिनका ताल्लुक कर्नाटका के शहर हुबली से है, जो को आज मिरानी ग्रुप की तरफ से 500 इनाम दिया जाएगा। जी मुफ्ती साहब। जी, मैं ये अर्ज कर रहा था कि किसी के जहन में ये बात पैदा हो सकती है जो आपने
سوال کیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگوں کے طرف سے آپ نے خود ہی سوال کر لیا ہے کہ لوگ جی. نہیں پوچھ پا رہے ہیں، تو آپ خود سوال کر کے اس کا جواب لوگوں تک پہنچا دینا چاہتے ہیں. جی جی جی. حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ جی ٹھیک اولیاء کرام کو کشف کے ٹھیک ہے، ذریعے بتائیے. معلوم ہوا کہ امام کا ایک اور معنی بھی ہے. ایک مشہور معنی امام کا، جس معنی کے اعتبار سے ہم امام اعظم کو امام کہتے ہیں، امام شافعی کو امام کہتے ہیں، امام احمد ابن حنبل کو امام کہتے ہیں، امام مالک کو امام کہتے ہیں. یہ ایک معنی ہے. اس معنی کے اعتبار سے ہم ان چاروں کو امام کہتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ امام کا ایک اور معنی ہے جو کشف کے ذریعے اولیاء کرام کو معلوم ہوا، اور کشف بھی حصول علم کا ایک بہترین ذریعہ ہے. وہ معنی کیا ہے جو اولیاء کو کشف کے ذریعے معلوم ہوا امام کا؟ تو میں عرض کروں کہ وہ معنی قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ وہ معنی یہ ہے کہ بعض خاص بندے اللہ رب العزت کے ایسے ہوتے ہیں جن پر اللہ رب العزت کی خصوصی توجہ ہوتی ہے، اللہ رب العزت کا خصوصی کرم ہوتا ہے، اور پھر جتنے بھی اولیاء کرام روئے زمین پر ہوتے ہیں وہ اسی پاک ذات کے وسیلے سے اللہ رب العزت کی رحمتیں اور اس کے کرم کو اپنی ولایت کی استعداد کے اعتبار سے اس بندے کی وساطت سے حاصل کیا کرتے ہیں. یعنی ایک اللہ کا مخصوص بندہ ہوتا ہے جس پر اللہ کا خصوصی فضل ہوتا ہے، اور پھر وہ فضل اس کے ذریعے اس کے تمام اولیاء میں تقسیم کیا جاتا ہے. اسی کی وجہ سے اللہ دیگر بندوں کو ولایت عنایت فرماتا ہے. اس معنی کے اعتبار سے ائمہ اہل بیت کو ائمہ کہا جاتا ہے، اور اس اعتبار سے 12 امام اہل بیت کے ہیں جنہیں ہم 12 امام کہتے ہیں. سب سے پہلا نام ان 12 میں سے حضرت علی شیر خدا فاتح خیبر داماد مصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے. حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ظہور سے لے کر حضرت علی شیر خدا فاتح خیبر کی روح پاک سے متعلق تھا یہ پاک منصب، یہ پاک مرتبہ. اس لیے سابقہ امم میں بھی اگر کسی کو اللہ نے مرتبہ ولایت سے سرفراز فرمایا ہے تو وہ حضرت علی شیر خدا فاتح خیبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روح پاک کے وساطت سے عنایت فرمایا ہے. اور جب تک آپ اس روئے زمین پر موجود رہے آپ ہی کے وسیلے سے لوگوں کو ولایت ملتی رہی. پھر آپ کے بعد میں یہ مقام، یہ مرتبہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے شہزادے سیدنا سرکار امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عنایت فرمایا. ان کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور ان کے بعد میں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان کے بعد حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان کے بعد حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور ان کے بعد حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان کے بعد حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان کے بعد حضرت امام محمد تقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان کے بعد حضرت علی نقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور ان کے بعد حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. پھر جب تک اس تار فانی میں غوث الاغواث قطب الاقطاب سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ افروز نہیں ہو گئے اس وقت تک یہ مقام سرکار حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پاک سے متعلق رہا. یعنی روئے زمین پر اس درمیان حضرت حسن عسکری کے دار فانی سے رخصت ہونے کے بعد اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تشریف لانے تک جتنے بھی لوگوں کو مقام ولایت سے نوازا گیا وہ حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے عنایت کیا گیا اور نوازا گیا. اور اس کے بعد پھر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام غوثیت کبریٰ عنایت فرمایا گیا. اور یہ مقام سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پاک سے آج بھی متعلق ہے، اس وقت تک متعلق رہے گا جب تک اس دنیا میں حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف نہیں لے آئیں گے. ماشاءاللہ بہت پیارا جواب مفتی صاحب. اور حقیقت تو یہ ہے اکثر ائمہ کے اقوال بھی ہیں، مفسرین کے بھی اور علماء کے بھی، جتنی بھی روئے زمین پر چاہے وہ فقہ کے امام ہو،
حدیث کے امام ہو, تفسیر کے ائمہ ہو, ان سب کو جو مقام امامت بھی جو حاصل ہوئی ہے, انہیں جو علوم فنون میں, علوم دینیہ میں جو مقام و مرتبہ جو ملا ہے, وہ صرف اہل بیت ہی کا صدقہ ہے. اور ان 12 ائمہ اہل بیت کی روحانی اور ان کے تصرفات کا انہیں صدقہ ملا ہوا ہے. خود امام اعظم ابو حنیفہ, جن کے ہم سب مسلک کو ماننے والے ہیں, وہ خود فرماتے ہیں اگر میں 2 سال اپنی حضرت امام باقر کی خدمت میں نہ رہا ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا. تو جنہیں سارے امام اپنا امام مانتے ہیں وہ 12 امام ہیں, جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ علم, معرفت, حقیقت, تصوف, روحانیت, شریعت اور طریقت کی ساری نہریں انہی کے ذریعے نکلتی ہے اور انہی پر ختم ہو جاتی ہے. بے شک بے شک, ماشاءاللہ. سچ ہے. بڑے پیارے انداز سے مفتی صاحب آپ نے ہمارے ویورز کو یہ بتایا. اچھا مفتی صاحب, محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج کا ہمارا ٹاپک ہے, جی. تو یہ بتائیے کہ یہ محبت اور عشق, یہ دونوں میں کیا فرق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر آدمی دعویٰ کرتا ہمیں عشق ہے, کوئی کہتے ہیں مجھے محبت ہے حضور پاک سے, تو اس کے دعوے کو دیکھ کر کے کس حد تک کیسے سمجھا جائے کہ یہ عاشق رسول ہے؟ یہ آپ نے میرے خیال میں 3 باتیں ارشاد فرمائی ہیں. ایک جی. محبت کیا ہے, اور پھر دوسری چیز عشق کسے کہتے ہیں, دونوں میں کیا تعلق ہے, دونوں کو کیسے ہم دیکھیں گے, اور پھر یہ کہ کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ میں محب رسول ہوں, میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں, تو ہم کیسے جانیں کہ کون اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے اور فقط دعویٰ کون کر رہا ہے, یعنی کس کا دعویٰ سچا ہے اور کون اپنے دعوے میں جھوٹا ہے. تو میں اولاً عرض کروں کہ خالق کائنات نے جو اشیاء پیدا فرمائی ہے کائنات میں, تو اللہ تعالیٰ نے اشیاء میں ایک مقناطیسی قوت رکھی ہے, کھچاؤ رکھا ہے, کشش رکھی ہے کہ ایک شے دوسری چیز کی جانب مائل ہوتی ہے. اگر غیر جاندار جو چیزیں ہیں وہ ایک دوسرے کی جانب کھینچتی ہیں تو ہم اسے کشش کہتے ہیں, اور جاندار جو مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی وہ ایک دوسرے کی جانب مائل ہوتے ہیں تو اسے ہم میلان کہتے ہیں, ایک دوسرے کی جانب کھینچتے ہیں. تو اس کھچاؤ اور اس کشش کو ہم میلان سے تعبیر کرتے ہیں. یہی میلان قلب کا اگر کسی چیز کی جانب جو ہوتا ہے لوگوں کا, یہ بڑھ جائے تو اسی کو محبت کہتے ہیں. جی ماشاءاللہ. جس کی تعریف علماء نے یوں کی ہے, محبت کی تعریف یوں کی ہے علماء اکرام نے کہ کسی مرغوب چیز کی طرف دل کے میلان کو محبت کہتے ہیں. بے شک. تو کوئی ایسی چیز ہو جو دل کو اچھی لگے, جس سے دل لذت محسوس کرے اور اس کی جانب دل مائل ہو جائے, لگ جائے اس کی جانب دل, تو پھر اس کو محبت کہتے ہیں. اور عشق کہتے ہیں دل کا کسی چیز سے چمٹ جانا, دل کا کسی چیز سے لگ جانا, اس کو عشق کہتے ہیں. تو حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں زیادتی محبت کو عشق سے تعبیر فرمایا ہے, زیادتی محبت کو عشق کہا ہے. بے شک سبحان اللہ. تو آپ کے فرمان کے مطابق محبت میلان قلب کا نام ہے, کسی مرغوب چیز کی جانب دل مائل ہو جائے یہ محبت ہے. لیکن جب بندہ محبت میں اور ترقی کرتا ہے, یعنی جس سے اسے محبت ہوتی ہے, یہ محبت اس کی بڑھتی جاتی ہے, بڑھتی جاتی ہے, پھر اسے ایک مقام حاصل ہوتا ہے کہ وہ مقام عشق پر فائز ہوتا ہے اور وہ عاشق بن جاتا ہے. اللہ کا احسان ہے, پیارا یہ رمضان ہے, ہر مومن کی شان ہے, پیارا یہ رمضان ہے. رمضان 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 رمضان. اس رمضان 100% حلال الکوہل فری عطر یوز کریں. خریدنے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں, ہماری ویب سائٹ adilqadri.com ابھی وزٹ کریں. اور ہاں, عطر ناپسند آنے پر 100% پیمنٹ ریفنڈ کر دیا جائے گا. حمد, نعت, منقبت, دعا وغیرہ ہائی کوالٹی آڈیو اور 4K کوالٹی ویڈیو اسٹوڈیو البم ریکارڈ کروانے کے لیے ابھی محمود RQ پروڈکشن سے رابطہ کریں. اللہ کا احسان ہے, پیارا یہ رمضان ہے, ہر مومن کی شان ہے, پیارا یہ رمضان ہے.
नाज़रीन इकराम, एक बार फिर से मैं आपका और अपने तमाम पैनल्स के उलमाए किराम का प्यारा रमज़ान एपिसोड में खैर मकदम और इस्तकबाल करता हूँ। हज़रात गिरामी, जैसा कि अभी मुफ्ती साहब किबला ने बड़ी प्यारी बात कही है इश्क और मोहब्बत के ताल्लुक से, तो दौरान गुफ्तगू मेरे जहन में बड़ा प्यारा शेर हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद रहमतुल्लाह तआला अलैह ने क्या खूब इरशाद फरमाया है, मकामे इश्क है कानून की इज्जत से बहुत बाला, यहाँ हर आने वाला अक्ल से बेगाना आता है। अब हम चलते हैं अपने नए मेहमान की तरफ, जिसे दुनिया मुफ्ती सलमान अजहरी के नाम से जानती है, और इंशाअल्लाह तबारक तआला उनसे भी इसी मौजू पर गुफ्तगू करेंगे, मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के टॉपिक पर। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। उम्मीद है मुफ्ती साहब खैर और आफियत से आप होंगे। दुआएं आपकी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल व करम एहसान है। जी माशाल्लाह मुफ्ती साहब किबला, मैं आपका ममनून मशकूर है। आपने बड़ी मसरूफियात के बावजूद भी मुझे वक्त दिया, मीरानी ग्रुप ऑफिशियल पेज को टाइम दिया है। अल्लाह आपको जज़ा अता फरमाए, आपके हौसले को बुलंदी अता फरमाए, आपकी जो भी कार्य खैर आप कर रहे हैं उसे कबूल फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए, आप सबकी खिदमत को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आमीन आमीन। मुफ्ती साहब किबला, अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आज का हमारा उन्वान है आज की महफिल का, मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, और इसी ताल्लुक से हम लोग इंशाल्लाह आज गुफ्तगू करेंगे। और हमारे व्यूवर्स को, नाजरीन को और तमाम नौजवानों को ये पता होना चाहिए कि हमारा जो हम दावा करते हैं मोहब्बत रसूल का, वो दावा में हम कितने मुकम्मल हैं, कितने नाकिस हैं, और मोहब्बत का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत कैसी होनी चाहिए, और अगर मोहब्बत है तो उस मोहब्बत में इजाफा कैसे हमें करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफा व सलामुन अला हबीबिहिल मुस्तफा, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। नाज़रीन, सामाईन, और खुसूसियत के साथ इस महफिल पाक में मौजूद मेरे करम फरमा हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद जामी अशरफ साहब क़िबला और दीगर उलमा व असातिज़े मिल्लत, मैं मशकूर व ममनून हूँ कि आपने इस मिंबर से लोगों तक मुझे पैगाम पहुँचाने का फ़ायदा फरमाया है और हुक्म फरमाया है। आपके हुक्म की तामील करते हुए जो बातें मुझ फ़कीर तक पहुंची हैं या मेरे मुताले में, वो अर्ज़ करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहली चीज़ ये है, मैं तो शुक्रिया अदा करता हूँ आपने टाइम निकाला, क्योंकि आपकी बड़ी मसरूफियत है अल्हम्दुलिल्लाह, और आपका लिखने पढ़ना और दावत व तबलीग से बड़ा गहरा ताल्लुक है। मैं आपका शुक्रिया अपने टीम की तरफ से भी अदा करना चाहता हूँ। ज़रूरतें तो बहुत हैं, लेकिन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आपसे ज़्यादा ज़रूरी तो ज़िंदगी भी नहीं है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए जो वक्त निकाला जाए वही हमारी ज़िंदगी का असल वक्त है। बहरहाल, बहुत प्यारी बात, मोहब्बत रसूल हमारे लिए ईमान है। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के शेर से मैं गुफ्तगू को शुरू करता हूँ। अल्लाह की सरता व कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। और हम हर जुमा के खुतबे में भी ये खुतबे रज़विया में पढ़ते भी हैं, अला ला ईमान लिमन ला मोहब्बत ला, आगाह हो जाओ, खबरदार, उसका ईमान ही नहीं जिसके पास रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नहीं। और इकबाल ने उसको यूं कहा है, ब मुस्तफ़ा बरसा खैश के दी हम आमोस्त, अगर बऊ न रसीदी तमाम भूल है बीस्त। अपने आप को रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तक पहुंचा दो, यही दीन है। दी हम आउस्त का मतलब ये है कि दीन वही है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और अगर अपने आप को रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तक नहीं पहुंचा है तो फिर ये सब अबू लहबी है, यानी हम में अबू लहब में कोई फर्क नहीं रह जाता। तो अजीज़ान गिरामी वक़ार, बहुत सारे लोग मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सिलसिले में सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं। एक बात मैं आपको अर्ज करता हूँ, यहाँ पर उलमा, मशाइख और खुसूसियत के साथ सादात भी हैं।
बड़ी बात नहीं है। हजरत सैयदना अबू बकर शिबली रदी अल्लाह ताला अन्हु की एक बात मैं नकल करता हूँ, सुनने में तो बहुत हल्की आसान लगती है, लेकिन सोचने और समझने के एतबार से बहुत भारी है। हजरत सैयदना अबू बकर शिबली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल और सबसे टफ अगर कोई सवाल है तो ये सवाल है। तवज्जो चाहता हूँ, सवाल अगर किसी ने मुझे मेरी जिंदगी में कर लिया, क्या आपको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है या नहीं, सवाल है ये। और हजरत अबू बकर शिबली फरमाते ये मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल सवाल है। मुझे बताएं ये कौन सा मुश्किल सवाल है? अभी अगर आपसे सवाल करें तो आप सब जवाब दे देंगे, हाथ भी उठाएंगे, दोनों हाथ उठाते हैं। जाहिर सी बात है, मजमे में जब किसी से पूछा जाए कि आपको रसूल पाक से मोहब्बत है या नहीं, सब उठा देंगे। लेकिन सिलसिला कादरिया के एक मशहूर बुजुर्ग हैं सैयदना अबू बकर शिबली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, फरमाते हैं अगर किसी ने मुझसे ये सवाल कर लिया, क्या आपको रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, तो मैं समझता हूँ मेरी जिंदगी का मुश्किल सवाल है। पूछने वालों ने कहा इसमें क्या मुश्किल है, जवाब दे। आप फरमाते हैं हाँ सुनो, अगर मैं इसके जवाब में ना कह दूं तो ईमान से हाथ धो बैठूंगा। अगर ये कह दिया कि मुझे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं है, माअज़ल्लाह ईमान ही खत्म हो गया। और फरमाते हैं और अगर मैं हाँ कह दिया कि हाँ मोहब्बत करता हूं, तो फिर मेरा ज़मीर मुझको मलामत करेगा, दिल मुझे कोसेगा कि तेरे अमाल कहाँ और तेरे महबूब के अमाल कहाँ, तो मैं झूठा ना पड़ जाऊं, इसलिए मुझे ये जवाब देना भी मुश्किल पड़ जाता है। मेरे अजीजों, अब मोहब्बत रसूल को कैसे हम पहचानें? इस जुमले के साथ आप बढ़े आगे। हम बोलने के लिए सब आशिकान रसूल हैं, हम जुबानी एतबार से सब मुहिब्बान रसूल हैं। असल मोहब्बत तो वह है कि आपके हर अमल में महबूब के जलवे नजर आने लग जाए। जब तक आपके किरदार से वो खुशबू ना आए, उस वक्त तक आपका दावा करना बेकार है, आपका दावा बेकार है। आप कहते रह जाएं, मजमे में सुबह से लेकर शाम तक आप नारे लगाते रह जाएं, गले फाड़ लें आप, इसको मोहब्बत नहीं कहते, इसको मोहब्बत नहीं कहते। आपके अमल से जाहिर होना चाहिए आप मोहब्बत कितनी करते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले के अमाल से खुद ही जाहिर हो जाएगा कि वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कैसी मोहब्बत करता है। सैयदना जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की करामतें मशहूर थी। एक शख्स आया आपकी करामतें देखने के लिए। करामत अक्सर लोगों के जहन में यही है ना कि हवा पे चल के दिखाएंगे, पानी पे चल के दिखाएंगे, हवा में उड़ के दिखाएंगे और ठोकर मार करके किसी चीज को निकाल देंगे, सोने का सिक्का निकल जाएगा, फला हो जाएगा। तो इस तरह की बातें लोगों ने करामत इसी को तस्वुर कर लिया है। आप सुने, सैयदना जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास एक शख्स आया और मेहमान बन करके रहा, सिर्फ वो करामत देखना चाहता था। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 8 दिन गुजर गए, उसे बज़ाहिर कोई करामत नजर नहीं आई, बज़ाहिर कोई करामत नजर नहीं आई। और 8 दिन के बाद वो वापस रुखसत होने लगा। हज़रत सैयदना जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उससे पूछते हैं, मियाँ तुम आए क्यों थे, क्या तुम्हारा मकसद था और फिर जा भी रहे हो? तो उस शख्स ने कहा, देखें बात सच्ची सच्ची ये कह देता हूं कि मैंने आपकी करामतों का बड़ा शोहरा सुना था कि आपकी करामतें दूर दूर तक मशहूर थी। मैं सोचा अपनी आंखों से भी एक मर्तबा देख लूं, मैं इसी करामत को देखने आया। तो हजरत जुनैद ने पूछा, तो क्या फिर तुमको कोई करामत नहीं नजर आई? कहा कुछ तो नजर नहीं आया, कोई खास बात तो नहीं, 8 दिन में आपके साथ रहा। तो हजरत जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सवाल क्या करते हैं, अब सुनिए। फरमाते हैं, तूने सुबह शाम दोपहर सब मुझे देखा? कहा हाँ बिल्कुल देखा। कहा इन 8 दिनों के अंदर तूने कभी मुझे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत के खिलाफ कोई काम करते देखा? अल्लाह। तो उस शख्स ने कहा, हाँ ये बात तो है कि मैंने आपके हर अमल को रसूल पाक की सुन्नत के मुताबिक देखा। यानी आपका उठना बैठना, चलना फिरना, खाना पीना, बात करना, हत्ता के लोगों से मुलाकात करना, ये सब सुन्नत के बिल्कुल मुआफिक था। तो हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं, ए दीवाने फिर और कौन सी करामत तो ढूंढ रहा? रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अदाओं पर अमल कर ले जाना, यही दुनिया की बड़ी करामत। हाँ ये है मोहब्बत रसूल
میں سمجھتا ہوں جس کے سینے میں آئے وہی ولی بھی ہے اور وہی اس کی کرامت بھی ہے. جو لوگ اپنے ذہنوں میں بٹھا کر کے رکھتے ہیں کرامت کا مطلب اب ہوا، وہ کچھ خارق عادات، کچھ ایسے دوسرے کام ہیں جو ضرورت پر اولیاء کاملین اس کا اظہار کرتے ہیں، ورنہ پوری زندگی اولیاء کی کرامت میں گزرتی ہے. پوری زندگی اولیاء کاملین کی کرامت میں ہے. وہ کیسی کرامت؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں سے کبھی وہ روگردانی نہیں فرماتے. اب میرے عزیزو، محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کچھ نمونے بھی میں آپ کو بتا دوں. حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات مروی ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثوں میں سے تقریباً 5 لاکھ حدیثوں کے آپ حافظ تھے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 5 لاکھ حدیثوں کے حافظ. مجھے یہ بتائیں کہ 5 لاکھ حدیثیں کس کو کہتے ہیں میرے عزیز؟ جو کمپیوٹر اس کو یعنی لوڈ کرتے ہیں تو ایک بڑا ڈاٹا چلا جائے. اور پھر کمپیوٹر کی بات تو الگ ہے، ایک آدمی عام آدمی وہ حافظ قرآن الگ ہے. اس کے علاوہ احادیث رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، اس کو من و عن یاد کرنا، روات کو، اسانید کو یاد رکھنا، کس وجہ سے؟ یہ میں آپ کو بتاؤں. ان کے شاگرد فرماتے ہیں امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث سناتے، مسکراتے اور پھر اپنے حافظے میں مزید حدیثوں کو لیتے اور یوں ارشاد فرماتے کہ مجھے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات جو حضور نے اپنی زندگی میں کی تھی، وہی باتیں اپنی زندگی میں دہرانے میں جو مزہ ہے وہ میرے اپنی باتوں میں کبھی مجھے مزہ نہیں آتا. بات سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہے جو سچی محبت کرتا ہے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، اس کی تمنا بھی یہ ہوتی ہے کہ میری زبان سے بھی وہ الفاظ نکلے جو رسول پاک کی زبان سے نکلا کرتے ہیں. آج مجھے بتائیں نوجوان بہت سارے ہیں جو فلمی ڈائلاگ کرتے ہیں اور اٹھتے بیٹھتے اس کی باتیں نقل کر کے بولتے رہتے ہیں. ارے فلاں فلم میں ہیرو نے ایسے کہا ہے، فلاں ویلن نے یہ کہا ہے. گانے ان کو کتنی جلدی یاد ہو جاتے ہیں. گانا ادھر لوگوں کے سامنے آیا، بجنے لگا، کانوں نے سنا اور اس کے بعد یہ ایسا محفوظ کر لیتے ہیں کہ اٹھتے بیٹھتے ان کو گانے یاد ہو جاتے ہیں. تو کچھ لوگوں کے ڈائلاگز یاد ہوتے ہیں اور کچھ لوگ گانے یاد ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو ادھر ادھر کے بیٹھے ہوئے گپوں میں جو دوسروں کی برائیاں کی ہوئی ہوتی ہیں وہ واقع یاد ہو جاتے ہیں. مجھے بتاؤ اے مسلمانوں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرنے والے نوجوانوں سے میں پوچھتا ہوں، تمہیں دنیاوی فحش نغمے تو یاد ہو گئے، میرے حضور کی زبان سے نکلے ہوئے کتنے کلمات تمہیں یاد ہوئے؟ کتنے کلمے یاد ہوئے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان پاک سے نکلی ہوئی جو الفاظ ہیں وہ یاد کیا کبھی کسی نے؟ تو پھر کس زبان سے محبت کے دعوے کرتے ہیں؟ کہاں ہے محبت کے وہ آثار؟ نہ زبان پر ہے، نہ جسم پر ہے، نہ چہرے پر ہے. تو خال خال ہے پوری طرح سے، نہ اندر سے نہ باہر سے. پھر یہ صرف زبان پر نعرہ لگا دینے کا نام کیسے ہو سکتا ہے کہ محبت رسول؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میرے عزیزوں قربانیاں مانگتی ہے، قربانیاں. اور جب تک بندہ ہوس کا پجاری ہوگا وہ حقیقت میں محبت رسول میں آ ہی نہیں سکتا. ایک بات یاد رکھ لے کہ دنیا کی خواہشات میں پاگل ہونے والا وہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں کہاں سے آ پائے؟ اس لیے کہ بہت ساری چیزیں اسے چھوڑنا پڑتا ہے. جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو محبت کے رنگ بتا دوں، سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں. نوجوان ابھی ظاہر سی بات ہے کسی لڑکی سے محبت ہو گئی، جوان ہے، شادی نہیں ہوئی، تو جوانی میں نوجوانوں کے لیے ایک بہت بڑا ٹارگٹ وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ہمارے لیے شریک حیات مل جائے. اور اسی طرح لڑکیاں بھی ہیں. معذرت کے ساتھ ہمارے برائے کرم معاف کیجیے گا، مجھے ایک مہمان جڑ چکے ہیں تو صرف ان سے سلام کلام کر لیں مفتی صاحب. پھر ایک سوال آپ کے لیے ہے، وہ لوگوں کی خواہش سے میں پوچھوں گا اگر آپ کی اجازت ہوگی. جی بالکل بالکل. جی معذرت خواہ ہوں میں مفتی صاحب، آپ کو نہیں کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. آپ فرما رہے تھے
हुजूर पाक के हवाले से दौरान गुफ्तगू हमने देखा बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता सना खां गुलाम मुस्तफ़ा कादरी साहब किबला वो हमसे जुड़ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। कैसे हैं गुलाम मुस्तफ़ा भाई, खैरियत से हैं आप? आपकी आवाज नहीं आ रही है, तो मेरे ख्याल से जी अल्लाह का करम, आप सुनाए कैसे हैं? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, बड़ी खुशी हो रही है और ख़ास तौर से हमारे मीरानी ग्रुप वाले बहुत खुश हैं। आपने जो कलाम पढ़ा था सरकार शाह मीरा के उर्स में, दर है कितना प्यारा प्यारा शाह जी, मीरा जी। आपका, बहुत लोगों ने जी। पसंद किया था अल्हम्दुलिल्लाह। और आज आप हमारे साथ स्क्रीन पर हैं और साथ ही साथ हमारे हिंदुस्तान के मशहूर आलिम दीन मुफ्ती सलमान अजहरी साहब किबला भी हैं। तो मुफ्ती साहब आपकी इजाज़त से मैं चाहता हूँ गुलाम मुस्तफ़ा भाई से एक नातिया कलाम ले लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इरशाद। जी गुलाम मुस्तफ़ा भाई, एक कलाम पेश करें आप हमारे नाज़रीन के लिए। मिलके दुरूद शरीफ पढ़ लें। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सुभान अल्लाह। या हबीब अल्लाह जबी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह सुभान अल्लाह। यही है एक जीने का सहारा या रसूल, आए है रसूल अल्लाह, और तुम ही हो बेसहारों का सहारा या रसूल अल्लाह, बेशक तुम ही हो बेसहारों का सहारा या रसूल अल्लाह, तुम ही को हर दुखी दिल ने पुकारा या रसूल अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत खूब। हश्र मेरे इस यकी की लाज रख लेना, बरोज़े हश्र मेरे इस यकी की लाज रख लेना, तुम्हारा हो तुम्हारा हो तुम्हारा या रसूल अल्लाह, बहुत खूब। रसूल अल्लाह तुम्हारा हो सुभान तुम्हारा अल्लाह, सुभान अल्लाह। हो तुम्हारा या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। हाफिज गुलाम मुस्तफ़ा कादरी साहब, बहुत प्यारे अंदाज से आपने पढ़ा ये कलाम। अभी आपका माह रमजान मुबारक में बड़ा प्यारा एल्बम आया जो आपके गालिबन चचा ने मुझे भेजा था, बहुत प्यारा वो भी एल्बम था माशाल्लाह। अच्छा माशा। और हम चलते हैं गुलाम मुस्तफ़ा भाई, एक सवाल लेंगे मुफ्ती साहब किबला से, उसके बाद फिर आपसे एक कलाम सुनेंगे। खास तौर से लोगों की फरमाइश है ये कलाम आपको जरूर पढ़ना है, दर है कितना प्यारा प्यारा शाह मीरा आपका। इंशाल्लाह। जी जी मुफ्ती साहब किबला, मैं चाहूंगा तीनों को स्क्रीन पर रखें ऑपरेटर साहब। जैसा कि मैं अपने व्यूवर्स को बताता चलूं कि आप प्यारा रमजान एपिसोड को इस वक्त देख रहे हैं, बड़े ही प्यारे अंदाज से माशाल्लाह आपका हम सब इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं। और आप लाइक करें, शेयर करें, और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हमारे यूट्यूब पेज को भी सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें। मेरे ख्याल से लाइन ड्रॉप हुई है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आज का उन्वान मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहत में फिर इंशाल्लाह गुलाम मुस्तफ़ा भाई से हम एक कलाम वापस लेंगे। अपने इश्क में, अवाम के इश्क में इजाफा पैदा हुआ इंशाल्लाह, क्योंकि गुलाम मुस्तफ़ा जो पढ़ते हैं उनका जो पढ़ने का अंदाज है,
تو महसूस होता है उनकी पूरी बॉडी से नाते पाक की आवाज निकल रही हो, जो उनका अंदाज है माशाल्लाह पढ़ने का। और हमारे हिंद के लोग बहुत पसंद करते हैं इनकी आवाज को, इनके कलाम को, इनके अंदाज को, इनकी स्टाइल को, और इनका आई कांटेक्ट बहुत प्यारा होता है हर कलाम में माशाल्लाह। ये आपकी खुसूसियत है। ये सिर्फ मैंने एक आप में देखा है जो आई कांटेक्ट, और दूसरे हाफिज ताहिर कादरी साहब में भी ये खूबी अल्लाह ताला ने रखी है माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि नाज़रीन किराम, आज मोहब्बत रसूल के उन्वान के तहत हमारे आका सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इतनी अपने उम्मत से मोहब्बत फरमाते, इतनी मोहब्बत फरमाते, इतनी मोहब्बत फरमाते कि हदीस पाक में आया हुआ जो हजरत अबू हुरैरा से मरवी है कि हुजूर फरमाते हैं, अगर मेरी उम्मत कोई तकलीफ में मुब्तला हो जाती है तो वो तकलीफ भी हुजूर पर गिरा गुजरती है। यानी मेरे आका को ये पसंद नहीं है कि मेरी उम्मत तकलीफ में आए। फिर आगे आका करीम फरमाते हैं, अगर उसके पांव में कोई कांटा भी चुभ जाता है तो तकलीफ मुझको होती है, लेकिन वो बीमारी, वो वबा, वो कांटा उसके गुनाहों का कफारा अल्लाह ताला बना देता है। ये मोमिनों के लिए कितनी प्यारी खुशखबरी मदीने से हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दिया है। आज दोस्तों हम देखते हैं दुनिया भर में लोग मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नामूस पर हमला करते हैं। उनके लिए मेरा सिर्फ एक बहुत प्यारा सा पैगाम है, और वो ये है कि आप जो मेरे आका की शान में गुस्ताखी करते हैं या आपके नामूस पर हमला करते हैं, मैं आपसे मुअद्दब होकर के हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करता हूं, एक बार मेरे आका की सीरत पढ़ के आप देख लें। मुसलमान और हैं, आका करीम और है। अगर आपको आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले मुसलमान को देखना है तो आप अजमेर में चले जाएं, ख्वाजा गरीब नवाज की जिंदगी को पढ़ लें, तुम्हें सलानी की जिंदगी को पढ़ लें, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर के हालात को पढ़ लें, हजरत गौसे आजम पीराने पीर दस्तगीर के हालात को पढ़ लें। आप ये देखें कि एक इंसानी तकाजा क्या होता है। अगर चोर किसी के घर में दाखिल हो जाए, चाहे वो इमाम का घर हो, आलिम का घर हो, या किसी बिजनेस का घर हो, कारोबारी का घर हो, लेकिन वो चोर जब निकलता है तो उसके चेहरे की हैयत बदल जाती है, उसकी हालत अवाम मार मार के खराब कर देती है। लेकिन जो सही मानों में जानशीन मुस्तफ़ा है, वारिसे उलूम मुस्तफ़ा है, सैयदना गौसे आजम पीराने पीर दस्तगीर, जब उनके घर कोई चोर जाता है तो मार खा करके वापस नहीं आता है, बल्कि विलायत को लेकर के आता है, पाबंदी शरा को लेकर के आता है, शरीयत और तरीकत पर चलने वाला हो जाता है और अल्लाह का महबूब बंदा बन जाया करता है। तो मेरे दोस्तों, मैं आप तमाम अहबाब से मुल्तमिस हूं कि जो लोग हमें देख करके मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर पर उंगली उठाते हैं, ये किसी एक मुसलमान का कैरेक्टर हो सकता है। बानी इस्लाम के ताल्लुक से एक बार आप जरूर पढ़ें, हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का मुताला करें। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं, उसके बाद गुलाम मुस्तफा साहब से कलाम लेंगे कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जंगे बदर, जो अभी अय्याम बदर आने वाले हैं, रमजानुल मुबारक में जो हुआ था, जंगे बदर से आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फारिग होकर के आए, जबकि वो जंग में मुसलमानों को फतेह हासिल हुई थी, मुसलमान कामयाब हुए थे। उस जंग से जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौटे, रात भर मेरे आका को नींद नहीं आ रही थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेचैन बेकरार थे। तो बाद सहाबा इकराम ने जब हुजूर पाक की बेचैनी को अंदाजा लगाया कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो क्यों नहीं रहे हैं, जबकि हम जंग को जीत चुके हैं, हम कामयाब होकर के आए हैं, हम हार के नहीं आए, उसके बावजूद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बेचैनी किस कदर और क्यों है, वजह क्या है? जब सहाबा ने तलाश किया तो क्या पता चला, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो तुम बाज बदर के कैदियों को कैद करके लेकर के आए हो, उन्हें तुमने रस्सियों में जकड़ा है, उनकी सिसक से मुझे रात में नींद नहीं आ रही है। अगर तुम चाहते हो कि मैं आराम से सो जाऊं तो क्या करो, उनकी रस्सी को ढीली कर दो ताकि वो भी सो जाएं, तब मैं सोऊंगा। जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैदियों पर, जबकि वो कैदी जालिम कैदी थे, उन पर जब आका करीम इतने मेहरबान हैं, उन पर आका करीम की ये रहमत है, तो आप अंदाजा लगाओ जो हुजूर के गुलाम हैं उनसे आका करीम को कितनी मोहब्बत होगी, कितनी उनसियत होगी। यकीन माने, मैं अपने व्यूअर्स से कहना चाहता हूं, आप हरगिज़ जज्बात में ना रहें, बल्कि हम अपने अखलाक और किरदार, अपने कैरेक्टर को, अपने नेचर को इस तरह बना लें
कि लोग जब हमें देखें तो ये कहें जब 1400 साल के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की ये दीवानगी है, इतना वफादार, ईमानदार, सच्चा, अमीन आदमी है, तो आमिना का लाल कितना अमीन होगा, आमिना का लाल कितना सच्चा होगा, आमिना का लाल कितना अपने हम रवा से मोहब्बत करने वाला होगा, आमिना का लाल अपने पड़ोसियों से कितनी मोहब्बत करने वाला होगा। दोस्तों चलते हैं, एक कलाम लेते हैं गुलाम मुस्तफ़ा कादरी से, उसके बाद इंशाअल्लाह तबारक तआला फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जी गुलाम मुस्तफ़ा भाई, आप अपना पसंदीदा कोई कलाम हमारे नाज़रीन को सुनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ मेरी बात बन हाय हाय, गई सुभान अल्लाह। है, मेरी गुलाम मुस्तफ़ा बात भाई, मैं आपको बीच में रोकूंगा, माफ कीजिएगा। ये कलाम हुजूर रईस मिल्लत मेरे वालिद बुजुर्गवार का बहुत पसंदीदा कलाम है। ये यानी रूहानी कनेक्शन मुझे महसूस हुआ, इसलिए मैं जुमला मुतरज़ा के तौर पर दरमियान में आ गया। जी बहुत प्यारे अंदाज से आप पढ़ रहे थे। जी मेरी बात बन गई है, मेरी बात बन गई है, तेरी बात करते करते, तेरी बात करते करते, तेरे शहर में मैं आऊं सल्लल्लाह, तेरे शहर में मैं आमीन, आऊं, तेरी नात पढ़ते पढ़ते। और किस चीज की तलब है न गया आरज़ू भी कोई, किस चीज की तलब है न गया आरज़ू भी कोई, तूने इतना भर दिया है, तूने इतना भर दिया है, कशकोल भरते भरते, कशकोल भरते भरते, मेरी बात बन गई है, मेरी बात बन गई है, तेरी बात करते करते। और मेरे सूने सूने घर में कभी रौनकें अता हो, मेरे सूने सूने घर में कभी रौनकें अता हो, मैं दीवाना हो गया हूँ, मैं दीवाना बन गया हूँ, तेरी राह तकते तकते, तेरी राह तकते तकते, मेरी बात बन गई है, तेरी बात करते करते। और नासिर की हाजिरी हो कभी आस्था पे तेरे, हम सब की हाजिरी हो कभी आस्था पे तेरे, कि जमाना हो गया है, कि जमाना हो गया है, मुझे आए भरते भरते, मुझे आए भरते भरते, मेरी बात बन गई है, तेरी बात करते माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। गुलाम मुस्तफ़ा भाई माशाल्लाह, अल्लाह आपकी आवाज़ को सलामत रखे, बहुत प्यारी मिठास आपकी आवाज़ में है, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं क्या, हमारा पूरा मुल्क आपको सुनता है, पसंद करता है। वो जो कलाम आपने पढ़ा था, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, उसके भी चंद अशार अगर आप हमारे व्यूवर्स को सुनाएंगे। उससे कबल मैं एक बार फिर से मिरानी ग्रुप ऑफिशियल पेज के जितने भी नाजरीन हैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ, ममनून और मशकूर हूँ कि आप हमारा ये प्यारा सा एपिसोड, प्यारा रमज़ान को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करना हरगिज़ ना भूलें। इस वक्त हमारे साथ बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता सना खां गुलाम मुस्तफ़ा कादरी साहब हैं, बड़े प्यारे अंदाज से कलाम पेश कर रहे हैं। और मैं आपको बताता चलूँ, इस टॉपिक के तहत में
آپ خود ناظرین کرام سوچیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بڑھیا جو تھی مکہ مکرمہ کو چھوڑ رہی تھی صرف اس لیے اسے یہ خوف تھا کہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہیں نوز باللہ اس کے جادو کی زد میں نہ آ جاؤں۔ اس غم میں جب وہ مدینہ مکہ مکرمہ کو چھوڑنے کا ارادہ کیا، اتفاق سے ایک نوجوان شخص اس بڑھیا کے پاس آیا اور کہا ماں تم کہاں جا رہی ہو اتنا سامان لے کر کے؟ اس نے کہا کہ بیٹا مجھے اب مکے میں رہنا نہیں ہے، ایک شخص ہے جو نئے دین کا اعلان کر رہا ہے، خدا کو ایک ماننے کی بات کر رہا ہے، اور میں اس کے باتوں سے عاجز آ کر کے یہ شہر کو چھوڑ رہی ہوں۔ وہ شخص پوچھتا ہے، نوجوان سا لڑکا، کہ ماں آپ اتنی سی بات میں پورا اپنا شہر چھوڑ کر کے جا رہی ہیں؟ بولے ہاں بیٹا اسی لیے۔ کہا ماں اتنے سامان آپ اکیلے کیسے لے کر کے جاؤ گی؟ کہا میں کسی کی انتظاری میں ہوں۔ وہ نوجوان شخص میں مختصر طور میں سنانا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں ہماری زندگی کا راہ عمل مل جائے ان واقعات میں۔ ہمیں سن کر کے سن نہیں ہونا ہے، سن کر کے الحمدللہ اس پر عمل کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ نوجوان شخص نے سارے سامان اپنے پشت پر رکھ کر کے اس بڑھے کے ساتھ چل پڑے۔ چلتے 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 دوران راہ میں راستے میں گفتگو ہونے لگی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار اس عورت سے پوچھتے تھے وجہ کیا ہے، جب اس نے ساری برائیاں راستے بھر حضور پاک کی برائی کرتی رہی، حضور پاک کے تعلق سے غلط الفاظ بولتی رہی، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی پر سکن تک نہ آیا۔ اور جب منزل تک پہنچ گئے تو وہ عورت پوچھتی ہے بیٹا تو مجھے جانتا بھی نہیں، پہچانتا بھی نہیں، تو کون ہے؟ تو اپنے بارے میں شاید آپ کا بھی بند ہو گیا۔ آواز نہیں آ رہی، شاید نیٹ ورک کی پرابلم ہو گئی ہے وہاں سے۔ میرے خیال سے نیٹ ورک کی پرابلم ہو گئی ہے۔ کے ذریعے اس کے قلب میں ایمان کی شوق پیدا فرما دیا۔ دوستو آج ضرورت ہے ہم سب کو حضور پاک کی اخلاق، کردار اور تعلیمات کو پڑھیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہم مطالعہ کریں کہ حضور پاک نے کب پتھر باندھا تھا، کب روئے تھے، کب عبادت کیا کرتے تھے، لوگوں کو کھانا کھلا کے خود بھوکے رہا کرتے تھے، پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرتے تھے۔ حضور پاک تو جانوروں پر بھی شفقت کرتے تھے۔ جو شخص جانوروں پر رحمت بن کر کے آیا ہو جانوروں کے لیے، تو بتاؤ انسانیت کے لیے کتنی بڑی رحمت ہوگی میرے آقا کی ذات۔ اب ہم چلتے ہیں اگلے کلام کی طرف، غلام مصطفیٰ قادری کے پاس، اور ان سے ایک کلام اور لیتے ہیں جو لوگوں کی فرمائش ہے۔ میں چاہوں گا غلام مصطفیٰ بھائی، ہمارا ملک خواجہ غریب نواز کا ملک ہے اور یہاں پر ان کی حکومت چلتی ہے، ان کی شان میں کچھ آپ خراج عقیدت پیش کریں۔ اس کے بعد سرکار شاہ میرا قطب ربانی محبوب غوث جیلانی حضرت پیر میرا سید ولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور غوث اعظم کے سگے پوتے ہیں، جو کلام آپ نے پڑھا تھا در ہے کتنا پیارا پیارا شاہ میرا آپ کا، وہ بھی آپ ہمارے سامعین کو سنائیں۔ خواجہ خواجہ تیری شان
ख्वाजा मोइनुद्दीन तेरी शान ख्वाजा मोइनुद्दीन तेरी शान ख्वाजा मोइनुद्दीन तू रसूल पाक की आले गए तू रसूल पाक की आले गए तू रसूल पाक की आले गए मेरा बिगड़ा बात सवार दो मेरे ख्वाजा मुझको नवाज दो मेरा बिगड़ा बात सवार दो मेरे ख्वाजा मुझको नवाज दो तेरी एक निगाह की बात ख्वाजा एक निगाह ख्वाजा एक निगाह ख्वाजा एक निगाह ख्वाजा एक निगाह तेरी एक निगाह की बातें हैं मेरी जिंदगी का सवाल है मेरी जिंदगी सुभान अल्लाह का सवाल है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह न कोई पाया ख्वाजा तेरे पाए का हमने न कोई पाया ख्वाजा तेरे पाए का हमने न कोई पाया ख्वाजा हिंद के सारे वली हिंद के सारे वली तेरी रियाया ख्वाजा मेरा ख्वाजा अता आए रसूल है वो बहारे चिश्त का फूल है वो बहारे गुलशन फातिमा वो बहारे गुलशन फातिमा चमने अली का निहाले गए चमने अली का निहाले गए तेरी शान ख्वाजा ए ख्वाजगा तेरी शान ख्वाजा ए ख्वाजगा तुझ बे कसों का ख्याल है। सुभान अल्लाह। गुलाम मुस्तफा कादरी साहब, एक कॉल हम लेते हैं और फिर उसके बाद इंशाल्लाह तबारक तआला आपसे कलाम लेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको सलाम कह रहे हैं, आपको बहुत सारी फरमाइश भी आ रही है, लेकिन मुझे मालूम है आप बड़े कीमती वक्त हमें आपने दिया। एक कॉल हम लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम जी अल्लाह करम। कौन आप, कहाँ से बोल रहे हैं? जी साजिद बोल रहा हूँ मंसूर एमपी से। हाँ बोलिए। ये कलाम की फरमाइश थी, कितना प्यारा रोजा है शाही मीरा आपका। कितना प्यारा रोजा है। ठीक है, इंशाल्लाह तबारक तआला शाह मीरा आपका ये कलाम हम लेंगे इंशाल्लाह तबारक तआला। ये और बहुत सारे लोगों ने फरमाइश किया आपके लिए, और इंशाल्लाह तबारक तआला एक कलाम है माह रमज़ान के ताल्लुक से, एक मौलाए कायनात के ताल्लुक से मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, और मैं चाहूंगा उसकी एक रिकॉर्डिंग आपकी होनी चाहिए, ताकि हमारे हिंदुस्तान के उशाकान मौला अली के लिए, वो बहुत सबकी ख्वाहिश है कि आपकी आवाज़ में मौला अली की शान में इंशाल्लाह ताला वो कलाम मैं आप तक पहुंचाऊंगा लिख करके, और वो आप अगर पेश करेंगे इस बार 21 रमज़ानुल मुबारक के मौके पर रिलीज करना मुझे एक एल्बम, तो मैं चाहूंगा वो आप ही के जरिए वो रिलीज हो वो एल्बम इंशाल्लाह। तो अब आप देख रहे हैं स्क्रीन पर हमारे साथ बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता सनाखा गुलाम मुस्तफा कादरी साहब किबला हैं। अब उनसे वो कलाम लेंगे जिसकी फरमाइश के लिए हजारों मैसेजेस और कॉल आए हैं कि जो हुजूर गौसे आजम पिराने पीर दस्तगीर शेख मोहिउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी के सगे पोते, द रियल ग्रैंड सन ऑफ शेख अब्दुल कादिर जिलानी, जिनका होली ग्रैंड खंबाज शरीफ में अशरफ नगर में वाक़े है, सरकार शाह मीरा हजरत पीर मीरा सैयद वली रदी अल्लाह तआला अन्हु जहां के सज्जादा नशीन हुजूर रईस मिल्लत मजहर करामत गौसे आजम पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत सैयद रईस अशरफ शफीउल जिलानी है। इंशाअल्लाह तबारक तआला शाह मीरा की शान में गुलाम मुस्तफा कादरी साहब का ये कलाम आपकी समात के हवाले है। हाँ, दर है कितना प्यारा प्यारा शाह मीरा आपका, को सहारा शाह मीरा आपका, दर है कितना प्यारा प्यारा शाह मीरा आपका, बेसहारों को सहारा
शाह मीरा आपका। छट गई गम की घटाएं, टल गए तूफान भी, छट गई गम की घटाएं, टल गए तूफान भी, नाम जब हमने पुकारा शाह मीरा सुभान आपका। अल्लाह। दर है कितना प्यारा प्यारा शाह मीरा आपका, बेसहारों को सहारा शाह मीरा आपका। दर है कितना प्यारा प्यारा शाह मीरा आपका, बेसहारों को सहारा शाह मीरा आपका। मुफलिसी मोहताजगी उसके करीब आती नहीं, मुफलिसी बेशक मोहताजगी उसके करीब आती नहीं, मुफलिसी मोहताजगी उसके करीब आती नहीं। मिल गया जिसको उतारा शाह मीरा आपका, प्यारा शाह मीरा आपका, बेसहारों को सहारा शाह मीरा आपका। मीरा 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 सुभान अल्लाह। मीरा मीरा मीरा। रौनक दुनिया निज़ामी को लुभा सकती नहीं, रौनक दुनिया निज़ामी को लुभा सकती नहीं। हो गया है दिल हमारा शाह मीरा आपका, दर कितना प्यारा प्यारा शाह मीरा आपका, बेसहारों को सहारा शाह मीरा आपका। आ, आ, बेसहारों को सहारा शाह मीरा सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। गुलाम मुस्तफा कादरी साहब, अल्लाह आपको सलामत रखे, आपके वालिदैन को सलामत रखे, और अल्लाह तबारक तआला आपकी उम्र में खूब बरकत अता फरमाए। बहुत प्यारे अंदाज से आपने कलाम पढ़ा। और हमारे खंबात शहर में जहाँ ये आस्थाना वाक़ है, मुश्किल कोई घर ऐसा नहीं होगा जहाँ ये कलाम बजा ना हो। और जो आपने ये पढ़ा था ना, मीरा 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 मीरा, ये बिल्कुल हार्ट टचिंग था, बिल्कुल रोमटे जिसमें के खड़े हो जाए इंसान। कितना लोगों ने इसको पसंद किया, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक आप सबकी मोहब्बतों को सलामत रखे इसी तरह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। और एक कॉल और आ रही है, मैं एक कॉल लेता हूं, फिर इंशाल्लाह ताला आपसे और कुछ बातें करेंगे। थोड़ा सा आप मुझे टाइम दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। हेलो, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी आप कौन हो, कहां से? जी अजय, मैं एमपी से मदापुरा मंदसौर से बबलू बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। हजरत वो ये दिल भी हुसैनी फरमाइश, ये जान जी? भी हुसैनी, ये दिल भी हुसैनी कलाम की फरमाइश है। कौन से कलाम की? ये दिल भी हुसैनी है, जान भी हुसैनी है। अच्छा अच्छा, चलिए इंशाल्लाह तबारक तआला आखिर में ये कलाम हम लेते हैं। तो बड़े प्यारे अंदाज से वो किया था। मैं चाहूंगा ऑपरेटर साहब हमारी स्क्रीन पर वो गुलाम मुस्तफा कादरी साहब का जो कलाम पढ़ा था, दर कितना प्यारा प्यारा, उसकी हाईलाइट अगर आपके पास हो तो हमारे नाजरीन भी उस हाईलाइट को देखें। अच्छा गुलाम मुस्तफा भाई, एक कलाम आप सरकार आला हजरत का तहरीर करदा हमारे व्यूवर्स को सुना दें। शरीफ पढ़ लें। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह।
واہ کیا جو دو کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور دھارے چلتے ہے عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، دھارے چلتے ہے عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرا تیرا، واہ کیا جو دو کرم ہے شہ بطحا تیرا، اور فرش والے تیری ہائے شوقت ہائے اللہ اللہ، اولوں کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا اولوں کیا جانے، خسروائش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، واہ کیا جو دو کرم ہے شہ بطحا تیرا، اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار پہ لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، واہ کیا جو دو کرم ہے شہ بطحا تیرا۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، میں پھر سے دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اب تک ہزاروں لوگ اس پروگرام کو لائیو دیکھ رہے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں لوگ ابھی تک جڑے ہوئے ہیں۔ آپ لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور اپنی دعاؤں میں ہم سب کو بھی ضرور یاد رکھیں۔ یہ پیارا رمضان شو آپ بہت پسند کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آج آپ نے دیکھا ملک کے اور بیرون ملک کے بین الاقوامی شہرت یافتہ علماء، مفتیان اکرام، ثنا خواں حضرات نے آج شرکت کیا ہمارے اس پروگرام میں۔ میرانی گروپ آفیشل پیج پر تشریف لا کر کے ہمیں کیا نام ہے، ہم ان کا ممنون و مشکور ہیں، انہوں نے ہمیں موقع دیا، اپنا قیمتی وقت دیا۔ کل بھی انشاءاللہ تبارک تعالیٰ انڈین ٹائم کے حساب سے ٹھیک 10:30 بجے رات میں تراویح کے بعد ہم نئے مہمان کے ساتھ، نئے پینل کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ ٹاپک ہوگا محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس پر گفتگو کرنے کے لیے ملک کے شہرت یافتہ خطیب اور باصلاحیت مفتی حضرت علامہ مولانا مفتی عرفان حشمتی صاحب قبلہ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ وہ کل ہمارے ساتھ اسی میرانی اسٹوڈیو میں ہوں گے، اور ان کے ساتھ ہندوستان کے مشہور نعت خواں امیر حمزہ رضوی خلیل آبادی وہ ہوں گے، اور مولانا ذیشان برکاتی رہیں گے۔ مفتی صدام حسین برکاتی میرانی، صدر میرانی دارالافتاء خنباز شریف بھی اس کل کے پینل میں موجود رہیں گے، تو آپ ضرور دیکھیں گے۔ اور جو آج میں نے 11 بجے جو سوال آپ لوگوں سے پوچھا تھا، اس کا جواب جو صحیح دے گا برائے کرم آپ مجھے میرے پرسنل نمبر پر جواب لکھ کے مت بھیجیں، کیونکہ اس سے میرا کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ جو نمبر مینشن کیا گیا ہے میں آپ کو ایک بار پھر سے نمبر لے لیتا ہوں، اس کے بعد آخر میں الوداعی کلام بھی ہم لیں گے غلام مصطفیٰ صاحب سے، اور اس نمبر پر آپ اپنا میسج کیجئے گا صحیح جواب 8128884217۔ جو میرانی گروپ آفیشل پیج جو فیس بک کا ہے اس پر آپ جائیں گے تو ترنت واٹس ایپ کا کالم آتا ہے، آپ اس پر کلک کریں گے، اپنا صحیح جواب دیں گے۔ آج کی محفل کا ہمارا سوال
ये था कि सिलसिले चिश्त अहले बहिर यानी गरीब नवाज के सिलसिले चिश्त में वो दो कौन से अजीम बुजुर्ग हैं जिन्होंने अपनी तर्क सल्तनत को तर्क किया है। उनमें से एक गरीब नवाज के पीरों में हो आते हैं और एक गरीब नवाज के मुरीदों में आते हैं। उन दो अजीम बुजुर्ग का नाम सिर्फ आपको बताना है। जो सही जवाब देगा मिरानी ग्रुप ऑफिशियल पेज हुजूर रईस मिल्लत की तरफ से 500 रुपया नकद इनाम उसे कल दिया जाएगा। और आज के जो हमारे विनर थे वो मोहम्मद मस्तान जिनका ताल्लुक हुबली कर्नाटका से है, और दूसरे विनर हमारे थे आसरीन अशरफ जिनका ताल्लुक बसखारी शरीफ इंडिया से है, अम्बेडकर नगर के जिला अम्बेडकर नगर से है। इन दोनों विनर्स को इंशाअल्लाह तबारक तआला अभी मिरानी ग्रुप की तरफ से इनाम मौसूल हो जाएगा या हो चुका होगा इंशाअल्लाह तबारक तआला। और आज का जो मौजू था मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब वक्त भी अपने इंतहा की तरफ जाता है। मैं एक बार फिर से आप तमाम का, अपने व्यूवर्स का, अपने मेहमानों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने कीमती वक्त निकाला, हमारे प्रोग्राम को पसंद करते हैं, लाइक और शेयर करते हैं। चलते चलते गुलाम मुस्तफा भाई, आप अपने बारे में कुछ ऐसा कुछ बताइए जो अब तक आपने किसी को नहीं बताया है, जो खाली हमारे मिरानी व्यूवर्स के लिए। ये नाते पाक आप जो पढ़ते हैं तो क्या बचपन से आपने ट्रेनिंग लिया है कि आपके घर में कोई नातखां था या आपके वालिदैन की तरबियत थी? ऐसा कुछ बताएं जो हमारे नौजवान बच्चों में ये जज्बा पैदा हो और वो भी आपकी तरह अच्छे सनाखा बन सके। आमीन आमीन। माशाल्लाह से बचपन से तो मतलब जब स्कूल में पढ़ता था, जब पहली बार जी मेरे को जब अवार्ड मिला, जब पता नहीं था कि इतना के माशाल्लाह के, फिर इसके बाद मेरे को जब स्कूल गए तो इसके बाद जब वो स्कूल में कंपटीशन था तो उसमें जी जो वहाँ के सर थे उन्होंने कहा कि आप भी हिस्सा लें कंपटीशन में। तो मैंने कहा जी मैं ज़रूर लूँगा। इसके बाद जब मैं घर पर आया तो मैंने अपने वालिद साहब को बताया, तो मेरे वालिद साहब ने बोला आपको ये नात पढ़नी है। तो मेरे वालिद साहब ने मुझे वो नात लिख के दी। वो पहली नात थी, वो यही थी कि मेरी बात बन गई आका तेरी बात करते करते। तो मेरी नात माशाल्लाह। वो मैंने स्कूल में पढ़ा तो अल्लाह के करम से मेरे को फर्स्ट प्राइज मिली। और इसके बाद से जब मैं 6 साल का था जी जब मुझे फर्स्ट प्राइज मिली थी। इसके बाद फिर जब मैं सही से जो कहेंगे मैं आया हूँ, वो मुझे 2 साल हुए हैं जो मेरी नात रिलीज हुई है हीरा गोल्ड से। माशाल्लाह। फर्स्ट 2 साल हुए हैं। अच्छा, आपके पसंदीदा नात खां कौन है? मेरे पसंदीदा नात खां अलहाज जी उवैस रजा कादरी हैं। अच्छा, माशाल्लाह। उवैस रजा कादरी साहब तो सबके पसंदीदा हैं, बिल्कुल हमारे इंडिया में भी लोग बहुत पसंद करते हैं। रमजान 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 रमजान। इस रमज़ान 100% हलाल अल्कोहल फ्री अत्तर यूज़ करें। खरीदने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, हमारी वेबसाइट adilqadri.com अभी विजिट करें। और हाँ, अत्तर ना पसंद आने पर 100% पेमेंट रिफंड कर दिया जाएगा। डिस्कनेक्ट हो गया। रमजान अल्लाह का एहसान है, प्यारा ये रमजान है, हर मोमिन की शान है, प्यारा ये रमजान है। डिस्कनेक्ट हो गया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन किराम, ये बीच में लगता है कुछ ऐड आ गई थी, इसकी वजह से थोड़ा हम लोग डिस्कनेक्टेड हुए थे। लेकिन स्क्रीन के एतबार से, दिल के एतबार से हमेशा हम लोग कनेक्टेड है। हर आशिक रसूल दुनिया के किसी भी कोने में हो, वो हमेशा अपने से कनेक्टेड होता है, मोमिन की रूह से ज्यादा करीब होता है। हमारी मोहब्बत ऐसी सलामत रहे, बरकरार रहे। जी, तो मैंने आपसे पूछा था आपके पसंदीदा सना खान उवैस रजा कादरी साहब है। जी। अच्छा, हमारे इंडिया में आप किसको पसंद करते हैं नात सना खान में? इंडिया में मैंने सना खान सुने नहीं है, मुझे इतना तजुर्बा नहीं है कि कौन वहाँ पर। हमारे इतने बड़े मुल्क में आपने किसी को सुना? अच्छा, आपने सुना ही नहीं किसी को अभी तक? नहीं सुना अभी। अच्छा, असल में हमारे इंडिया में कैसा है कि क्लासिकल पढ़ने वाले बहुत कम है और कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि जो वो आए, और बाकी एक से एक कलाकार हैं माशाल्लाह, आवाज़ें एक से एक हैं। ख़ास तौर से इंडिया के वेस्ट बंगाल का इलाका हुआ, हमारे गुजरात के बहुत मशहूर सना खां हैं शब्बीर बरकाती, आपने शायद नाम सुना होगा, जो बिल्कुल काले काले हैं, लगता है अफ्रीका के हैं, लेकिन वो गुजरात के रहने वाले हैं। उनको इंडिया में लोग साउथ अफ्रीका का समझते हैं अक्सर लोग। माशाल्लाह वो भी बहुत प्यारा पढ़ते हैं कलाम।
پھر بہت سارے ہمارے اعظم رضا تحسینی بریلی شریف سے ہیں, وہ بھی بہت پیارا کلام پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. لیکن ہو سکتا ہے آپ تک کوئی ایسی آواز ابھی تک نہ پہنچی ہو کہ جو آپ کو سمجھ میں آئی ہو کہ یہ آواز اچھی ہے. بہت اچھی آواز ہوگی, وہاں پہ بھی مالک ہیں اور ماشاءاللہ جی سے ابھی سنیں گے انشاءاللہ, ان سب کو سنیں گے انشاءاللہ, پھر آپ کو بتائیں گے. انشاءاللہ تعالی پھر سے ایک بار ہم آپ سے وقت لیں گے اور کچھ انڈیا کے نعت خواں کو بھی رکھیں گے ساتھ میں, تاکہ دونوں ذائقہ ہمارے ویور سمجھ سن سکیں اور ان کو ٹیسٹ پتا ہونا چاہیے کہ کہاں کا ٹیسٹ زیادہ اچھا ہے. باقی نعت تو نعت ہے, اس میں کوئی بات نہیں, مین کلاکاری ہے اور آواز جو ہوتی ہے اس کی ایک الگ ہی لچک ہوتی ہے, جیسا کہ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس صفت آپ کو عطا کیا ہے. جزاک اللہ. جزاک تو غلام مصطفیٰ بھائی بس ایک کلام اور لیں گے, آپ نے بہت وقت دیا ہمیں ماشاءاللہ, میں آپ کا شکر گزار ہوں, اور ایک کلام اور آپ سے سنیں گے. اور لوگوں کی بہت ساری فرمائش آپ کے لیے, لوگ سلام آپ کو کہہ رہے ہیں. ایک کال لے لیتے ہیں بیچ میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ کون اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں ہمت نگر گجرات سے بول رہا ہوں حضرت. موہن بھائی جو تھے نا, ہاں جی جی بتائیے. ان کا چھوٹا بھائی حضرت. جی آپ کے دادا کا انتقال ہو گیا ہے, جی حضرت. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات کو بلند فرمائے, ان کے گناہوں کو معاف فرمائے. آمین اللہم مجھے آمین. خبر آج ملی تھی معین مستجاب کے ذریعے. تو آپ کی کوئی فرمائش ہے کہ آپ نے ایسے ہی فون کیا خیر پوچھنے کے لیے؟ نہیں میری فرمائش ہے حضرت, ایک وہ کلام, وہ جو سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول. اچھا, اعلیٰ حضرت کا کلام جو ہے, جی 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 جس کا مقطع یہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. جی 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 بس ٹھیک ہے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ, اگر غلام مصطفیٰ بھائی کی مرضی ہے, اگر وہ پڑھیں گے سبحان اللہ, یا تو ایک آخری کلام ان سے مجھے لینا ہے. ٹھیک ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ابھی میں وہ کلام پڑھوں گا جی جو میرے چاچو نے میرے سے فرمائش کی تھی کہ آپ کو یہ کلام تو ضرور پڑھنا ہے, تو میں انشاءاللہ وہ کلام پڑھوں گا. اور یہ میری بھی جی تھی کہ میں آپ کے ساتھ یہ کلام شیئر کروں. جی جی محبت آپ کی. اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا, اللہ سبحان اللہ حق. اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا, عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا, مجھ کو بھی محمد کا سبحان اللہ, بے شک, آمین اللہم آمین. بنا جانا, اور قدرت کی نگاہیں بھی جس چہرے کو تکتی ہے, قدرت کی نگاہیں بھی جس چہرے کو تکتی ہے, اس چہرہ انور کا دیدار کرا جانا, سبحان اللہ, آمین انشاءاللہ. انور کا دیدار کرا جانا, اور جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل, جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل, اے عشق کبھی مجھ کو نیند ایسی سلا جانا,
आमीन इंशाअल्लाह। बहुत खूब। कभी मुझको नींद ऐसी सुला जाना और दीदारे मोहम्मद की हसरत तो रही बाकी, दीदारे मोहम्मद की हसरत तो रही बाकी, जुज़ इसके हर एक हसरत इस दिल से मिटा जाना। सुभान अल्लाह। नबी मेरे दिल में भी समा जाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद फरमाते हैं, तुम्हें न देखा तो किस काम की हैं ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों से। यकीनन बहुत प्यारे अंदाज से गुलाम मुस्तफ़ा कादरी साहब कलाम पेश कर रहे थे। मन तो यही हो रहा है कि ये महफिल रात भर चलती रहे, और मैं देख रहा हूँ मुसलसल लोग बढ़ते ही जा रहे हैं, देखने वाले व्यूवर्स की तादाद बढ़ती जा रही है। अल्लाह तबारक व तआला माह रमज़ानुल मुबारक के अशर रहमत की बरकत से हम सब के घर में खैर व बरकत नाजिल फरमाए। इस कोरोना की वबा से हम सब के जान व माल, ईमान और अकीदे की हिफाजत फरमाए। मौला करीम जो आशिक रसूल बीमार हैं उन्हें सेहत याबी अता फरमा दे मौला। या अल्लाह जो परेशान हाल है उनकी तकलीफ को दूर फरमा दे। बारिल्लाह तेरे महबूब सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम गुनहगार उम्मती हैं मौला। या अल्लाह तू हमें अरे गुनाहों को मत देख, तो अपने महबूब की रहमत की बरकत से हमारी गलतियों को माफ करके दरगुजर करके मौला इस वबा का खात्मा फरमा दे मौला। आज पूरा मुल्क हिंदुस्तान परेशान हाल है, लाचार और मजबूर और बेबस है मौला। बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी ने तेरे सामने अपने घुटने टेक दिए हैं मौला। या अल्लाह आज सांस ऑक्सीजन की लोगों में कमी पैदा हो रही है मौला, तू एक बार रहम फरमा दे, हुजूर की उम्मती पर रहम फरमा दे मौला। इस निस्बत की बदौलत इस वबा का खात्मा फरमा दे मौला, और जो जालिम है मौला उनके सीने में इस्लाम की मोहब्बत पैदा फरमा दे। या अल्लाह कुरान की अजमत उजागर फरमा दे, तेरे महबूब की मोहब्बत पैदा फरमा दे मौला। तू सारे दिलों का मालिक है मौला। या अल्लाह तू सबके दिलों का मालिक है मौला। या अल्लाह इस माह रमजान के अशरे रहमत की बरकत से इस्लाम का बोलबाला फरमा, आशिके रसूल को दुनियावी जिल्लत और रुसवाई से महफूज फरमा, आखिरत की शर्मिंदगी से महफूज फरमा। या अल्लाह आज पूरी दुनिया में आशिके रसूल परेशान हाल है मौला, उन सब की गैब से तू मदद फरमा दे। बारिल्लाह तूने बदर में फरिश्तों के जरिए मदद फरमाई थी मौला, आज वक्त मदद की जरूरत है मौला, वक्त करम की जरूरत है मौला। अपने बंदों के गुनाहों को माफ फरमा करके या अल्लाह तू हमारी जानिब ना देख, ये देख कि हम तेरे महबूब के उम्मती हैं, तेरे चहीते नबी के चाहने वाले हैं, हम पर रहम फरमा दे मौला। अमन और सुकून वाली जिंदगी अता फरमा दे, चैन और करार वाली जिंदगी अता फरमा दे। या अल्लाह हमसे कौन सा ऐसा गुनाह सरसद हुआ है कि हमारे कदम हरमैन से महरूम रह गए हैं, मस्जिद नबवी के तवाफ से महरूम रह गए हैं मौला। हमारी आंखों ने कौन सा कसूर किया है कि तेरे महबूब के गुंबदे खजरा को हम देख नहीं सकते हैं मौला। एक बार फिर से बाबे रहमत को खोल दे मौला। मौला हमारे लिए बाबे रहमत के दरवाजों को खोल दे मौला। फिर से हम तेरे खाने खुदा को लिपट करके अपने फरियाद कर सके मौला, अपने दिल की बातें सुना सके मौला। मौला हमारे जिस्म के हाथ पैर आंखों को सरापा, हमारे जिस्म को फिर से वो नूर अता फरमा दे कि हम तेरे खाने खुदा से लिपट करके मौला अपनी दिल की बातें कह सके मौला। फिर से हमारी आंखों में वो रोशनी अता कर दे कि हम मदीने मुनव्वरा में हुजूर पाक की बारगाह में बादब खड़े होकर के सलाम मोहब्बत पेश कर सके मौला। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह तू रहम फरमा मौला, हमारे मुल्क हिंद पर रहम फरमा दे मौला। बहुत सारे लोग परेशान हाल है मौला, इंसानियत सिसक रही है मौला। तू बेहतर जानने वाला है, तू बेहतर फैसला करने वाला है, तू हमसे बेहतर जानने वाला है मौला। तू करम फरमा दे, रहम फरमा दे। जो आशिके रसूल के घरों में लोग बीमार हैं
उन्हें शिफा अता फरमा दे, उन्हें शिफाए कामिला आजिला अता फरमा दे। तेरे महबूब की उम्मत को एक बना दे मौला, हम सबको नेक बना दे मौला। या अल्लाह हमें ऐसा मुसलमान बना दे जैसा तूने सहाबा के सीने में ईमान की रोशनी पैदा की थी, ताबई तबे ताबई औलिया सिद्दीकीन के कल्ब में रोशनी पैदा की थी। मौला हमें हुजूर का सच्चा दीवाना बनाए रखना, सच्चा आशिक बनाए रखना। मौला ऐसा बनाना जैसा तू चाहता है, मौला ऐसा हमें बना दे जैसा तू चाहता है। मौला हमारे वालिदैन की उम्र में बरकत अता फरमा, सेहत और आफियत अता फरमा, पुरसुकून जिंदगी अता फरमा, उनकी उम्र में बरकत अता फरमा। मौला हमारी जिंदगी का हर मकसद ऐसा बना दे जो तेरे महबूब की रजा के मुताबिक रहे मौला। या अल्लाह आला हजरत ने क्या खूब अर्ज किया है, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो ना मैं रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। मौला आज इन फिजाओं में जहर घुल गया है मौला, एक बार तो अपने महबूब के मुकद्दस शहर मदीने मुनव्वरा की बारगाह की उस मुकद्दस हवा को इस पूरी दुनिया में गर्दिश करा दे मौला। ऐ मदीने की हवा सीने से लग जा जरा, कल्ब हो रोशन मेरा तुम पे करोड़ों दुरूद, कल्ब हो रोशन मेरा तुम पे करोड़ों दुरूद। मौला मदीने मुकद्दसा के तमाम बहारों के तुफैल, वहाँ के ज़र्रात के तुफैल, एक बार दुनिया में अमन और सुकून पैदा फरमा दे मौला। हमें अपनी बारगाह का मुती और फरमा बरदार बना दे मौला। मौला जिनके घर वाले ईमान की हालत में रुखसत हुए हैं उनकी मगफिरत फरमा दे मौला, उनकी कब्र को नूर और रहमत का गहवारा बना दे मौला। या अल्लाह जो ये हम खल के खिदमत में लगे हैं मौला, इखलास के साथ लगे रहे मौला, दुनियावी माल से बचाए रखना मौला, दुनियावी शोहरत की लालच से बचाए रखना मौला। या अल्लाह इखलास के साथ खिदमत खल्क की तौफीक अता फरमा मौला, वो काम हमसे ले ले जो तेरे महबूब की पसंद के मुताबिक है मौला। या अल्लाह हमें सूफियाए इकराम गरीब नवाब मखदूम समनानी शाह मीरा की तालीमात पर अमल की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह उनके किरदार की तरह हमारे किरदार को बना दे, उनके अखलाक की तरह हमारे अखलाक को बना दे मौला, उनकी सुन्नत का हमें पैकर बना दे मौला। तो फजल फरमा, हमारे मीरानी भाइयों पर रहम फरमा मौला, तमाम मीरानियों पर रहम फरमा मौला। मीरानी दुनिया के किसी भी कोने में हो उनकी जान और माल ईमान और अकीदे की हिफाजत फरमा, हुजूर रईस मिल्लत के खुलफा के जान और माल ईमान और अकीदे की हिफाजत फरमा। या अल्लाह तमाम अहले सुन्नत वल जमात के उलमा, मशाइख, मुरीदीन, मुहिब्बी, मुतवस्सिलीन, मुतक़िदीन, हमारे खानका के शहजादगान, सज्जादगान कि सेहत और आफियत, पुरसुकून जिंदगी और उम्मत के लिए बेदारी नसीब फरमा दे मौला। तो फजल फरमा, करम फरमा, रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते। या रसूलुल्लाह करम कीजिए मुश्किल कुशा के वास्ते। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्किही व नूर अर्शिही वालिही व सहबिही अजमईन। नाज़रीन इकराम, कल 20 अप्रैल है तो आप हरगिज़ मत भूलिएगा, कल हमारा स्पेशल एपिसोड है। 20 अप्रैल ईस्वी तारीख के एतबार से हमारे आका रहमते दो जहां सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की यौम विलादत है। कल 20 अप्रैल को हमने ऐलान किया था एक हफ्ते से कि 20 अप्रैल को आप लाइव दुरूद पाक नजराने अकीदत में भेज सकते हैं हमारे मीरानी ग्रुप ऑफिशियल पेज पर। और कल इंशाअल्लाह तबारक तआला लाखों की तादाद में हम हुजूर की खिदमत में दुरूद पाक का हदिया पेश करेंगे। और कितना हसीन मौका फिर हमें मिला है कि 20 अप्रैल माह रमजान में मिली है और माह रमजान के ताल्लुक से हमें मालूम होना चाहिए कि नवाफिल का सवाब फराइज के बराबर हो जाता है और फराइज का सवाब 70 गुना अल्लाह ताला बढ़ा देता है। तो दोस्तों, अहबाब, मेरे तमाम व्यूवर्स और तमाम आशिकाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, कल 20 अप्रैल को यौम दुरूद मनाया जाएगा, यानी हुजूर पाक की विलादत का दिन मनाया जाएगा। कैसे? हुजूर की बारगाह में दुरूद का खिराज अकीदत पेश करके आप कसीर तादाद में कल हमसे जुड़ेंगे और इंशाअल्लाह तबारक तआला कल हम आपको लाइव हुजूर मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी का आस्ताने की ज़ियारत कराएंगे और वहां से दुआ होगी और आप दुआ पर आमीन कहेंगे। हजरत मुहद्दिस देहलवी ने फरमाया है, हिंदुस्तान में मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी का रोजा जिस जगह वाक़े है उस जगह को वो मकाम और फजीलत हासिल है कि वहाँ मांगी हुई दुआएं रद्द नहीं होती हैं। इंशाअल्लाह तबारक तआला कल बारगाह मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी से आपके लिए
उम्मत मुसलमा के लिए, हमारे प्यारे मुल्क हिंदुस्तान के लिए और तमाम आलम इस्लाम के लिए दुआ होगी, क्योंकि कल बहार का दिन है, मेरे आका की विलादत का दिन है। आप जरूर कल का प्रोग्राम देखेंगे ठीक रात 10:30 बजे अपने नए मेहमान के साथ। तब तक दें अपने मेजबान सैयद जामी अशरफ को इजाजत। कल मिलेंगे नए प्रोग्राम के साथ, नए मेहमान के साथ, नए सनाखा हजरात के साथ। यही है आशिक मुस्तफ़ा का पैगाम, घर घर आम हो। दुरूद व सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। अल्लाह का एहसान है, प्यारा ये रमजान है, हर मोमिन की शान है, प्यारा ये रमजान है। रमजान 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 हम्द, नात, मनक़बत, दुआ वगैरह हाई क्वालिटी ऑडियो और 4K क्वालिटी वीडियो स्टूडियो एल्बम रिकॉर्ड करवाने के लिए अभी महमूद RQ प्रोडक्शन से राब्ता करें। रमजान 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 रमजान। इस रमज़ान 100% हलाल अल्कोहल फ्री अत्तर यूज़ करें। खरीदने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, हमारी वेबसाइट adilqadri.com अभी विजिट करें। और हाँ, अत्तर ना पसंद आने पर 100% पेमेंट रिफंड कर दिया जाए। शर्ट हमारे ब्रांडेड है, पैंट हमारी ब्रांडेड है, सनग्लासेस हमारे ब्रांडेड है, घड़ी हमारी ब्रांडेड है, यहाँ तक के जूते भी हमारे ब्रांडेड है। लेकिन जो टोपी हम पहनते हैं, जो हमारी पहचान है, वो अनब्रांडेड है। हमारी कैप जिससे हमारी पहचान है, वो भी ब्रांडेड ही होनी चाहिए। ब्रांडेड इस्लामिक कैप, स्टाइलिश इस्लामिक कैप खरीदने के लिए हमारी वेबसाइट adilqadri.com अभी विजिट करें।